Let us to look over here what will be the length of this line OA. So for this measurement I am using this centimeter scale. O is at the 0 centimeter while this A. So this A is between this 2 and this very next division. It is going to lie between these two division. Okay, so what will be your measurement then? So we will write over here that length is equal to, it is 2 centimeter. Is this 2 centimeter? Okay, so we are known over here that actually the length is not exactly 2 centimeter. Okay, so therefore it could be if that we are going to have any device which can have its smaller measurement, because this scale it was having its measurement only up to 1 mm. This was its measurement, minimum measurement. But if any other device which can measure less than of it, so that what it will measure over there. So length with any other device that might be over here. It is 2 point. That next is that it is 0.2 centimeter. It may be of this one. Means this second device which I have used, it is of list count and that of 0.01. Okay, so this is that list count of this second device. So when I measured it with this device whose list count is 1 mm, so then I got it is 2 centimeter. But with that another, when I measured it, so it is observed over there 2.02 centimeter. Now when I will round it off, so again what it will come, so again it is that of 2.0 centimeter. Okay, so it means to say over here that this 2 it is measured with the devices, different devices. It is going to same over here. This 2 is same in it. What the next digit after this, that is not certain. Okay, so that is not certain over here. So it means to say over here that whenever we have to say this, that what is significant figure. Once again check over there what we said, that I get it is 2.43. Okay, so 2.43, it might be over there that 2.425. ठीक है, हमारे पास ये मेजरमेंट ऐसी हो सकती थी. ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या हो गया, when I will round off this 5, so then I will get this value. It means 2 is sure digit, 4 is sure digit, लेकिन ये जो 3 है ये क्या सी डिजिट है, ये एक डाउटफुल डिजिट हो रही है. क्योंकि 3 कैसे आया हमारे पास, या तो हम क्या करते हैं इसको मतलब कि जैसे ये 2 था और उससे नेक्स्ट 5 था, तो मैंने 5 को राउंड ऑफ किया तो लास्ट डिजिट को मैंने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया. या हमारे पास नेक्स्ट डिजिट जो था वो 6 था, तो इसलिए प्रीवियस डिजिट जो है वो 1 से इंक्रीज हो गया. ठीक है, तो इसलिए हमारे पास, या फिर ये ऐसे भी हो सकता था, इट इज़ 2 पॉइंट दैट ऑफ that of 4 and it is over there 3 2. this could be of this value. ठीक है, तो ये हमारे पास 2.432 भी हो सकता था. ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया कि जब 2 को राउंड ऑफ किया तो हमारे पास क्या रह गया, 3. ठीक है, सो आई गेट दिस. सो इट मीन्स टू से ओवर है, ये जो मेरे पास आंसर है इसमें ये जो 2 है वो डेफिनेट है, तीनों ही रीडिंग के अंदर 2 आता है. 4 ये भी हमारे पास तीनों रीडिंग में बन रहा है, लेकिन ये जो 3 है, 3 इज गोइंग टू बी दैट डाउटफुल डिजिट. ठीक है, तो इसलिए हमारे पास व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सिग्निफिकेंट देन वी नीड टू टेक. तो सिग्निफिकेंट फिगर कहने का मतलब हो गया दैट द नंबर, जो हमारे पास नंबर है उस नंबर के अंदर कुछ डिजिट्स क्या होती हैं, श्योर होती हैं, और उसमें एक डिजिट कैसी होगी, डाउटफुल. ओनली 1 डिजिट विल बी डाउटफुल. ठीक है, तो इसलिए ये क्या बन गया हमारे पास, इट इज दैट नंबर विद श्योर डिजिट प्लस 1 डाउटफुल डिजिट. ठीक है, तो उसमें क्या होगा, एक डाउटफुल डिजिट होगी. ठीक है,
सो देयरफॉर दैट दिस इज सेड टू बी सिग्निफिकेंट फिगर। अब जैसे हम यहाँ पर हेयर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द रूल्स दैट how to find out the significant figure. Now over here, more is the sure digit, more is the accuracy। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा हमारे पास श्योर डिजिट होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, एक्यूरेसी होगी। ठीक है, जैसे लेट अस सपोज हमने कोई मास मेजर किया। ठीक है, तो एक स्केल जो है बॉडी का मास मेजर कर रही है 4.0 किलोग्राम। ठीक है, दूसरी स्केल मतलब जो दूसरा हमारे पास जो डिजिटल बैलेंस है वो मेजर कर रहा है इसी को 4.02 किलोग्राम। ठीक है, और जो थर्ड है हमारे पास दैट इट इज़ गोइंग टू मेजर इट इज़ एज 4 दैट ऑफ 029 किलोग्राम। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर वी विल सी ओवर है कि इसमें क्या हो रहा है हमारे पास ये जो थर्ड जो डिजिटल बैलेंस है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कर सकता है, बहुत छोटी वैल्यू मेजर कर सकता है। आफ्टर डेसिमल ये 3 डिजिट प्लेस तक एक्यूरेटली मेजर कर रहा है, लेकिन इसमें लास्ट डिजिट क्या होगी, डाउटफुल डिजिट होगी। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास इसमें 2 डिजिट तो श्योर डिजिट हैं। ठीक है, लेकिन ये जो थर्ड डिजिट है ये कैसी होगी, डाउटफुल। इसमें क्या है, एक श्योर डिजिट है, एक डाउटफुल डिजिट है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर ये जो थर्ड रीडिंग थी इसमें कितने श्योर डिजिट थे, 3। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जिसमें जितने ज़्यादा श्योर डिजिट होते हैं वो उतने ज़्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, तो इसलिए सिग्निफिकेंट क्या होंगे, जिसमें श्योर डिजिट भी होगी और एक डाउटफुल डिजिट भी होगी, क्योंकि ये जो लास्ट डिजिट है वो हमेशा ही हमारे पास क्या रह जाती है, डाउटफुल। जैसे एग्जांपल के लिए इफ वी से ओवर हियर कि दैट 500 रुपीज़ वर गिवन टू अस। ठीक है, 500 रुपये हमें दिए गए एंड वी स्पेंट फ्रॉम इट दैट इट इज़ 278 रुपी। ठीक है, तो उससे हमने कितने खर्च कर लिए, 278 रुपी हमने स्पेंड कर लिए। ठीक है, नाउ व्हेन वी विल इन्फॉर्म आवर पेरेंट्स, जब हम अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि कितना खर्च हुआ तो क्या बताओगे, इट इज़ 278। ठीक है, तो उस वक्त आप क्या करते हो, राउंड ऑफ करते हो। ठीक है, सो व्हाट यू विल से दैट इट इज़ 250। ठीक है, कितना खर्च किया हमने, 250 रुपये खर्च किया। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर क्या रह जाता है कि जो या फिर इसको हम कितने कह देंगे, वी विल से ओवर देयर इट इज़ 280। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जो लास्ट डिजिट यहाँ पर रहेगी वो क्या रहेगी, इसमें हमेशा ही एक डाउटफुल डिजिट की तरफ हम जाने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हम जब भी बात बनाते हैं तो एक नियरेस्ट वैल्यू को अप्रोच करते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट अस लुक ओवर हियर, जितने ज़्यादा श्योर डिजिट होंगे किसी नंबर के अंदर तो उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी, और नंबर में श्योर डिजिट और एक डाउटफुल डिजिट होती है, तो इनको क्या बोला जाता है, सिग्निफिकेंट फिगर बोला जाता है। नाउ ओवर हेयर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कौन से होंगे। ठीक है, सो फॉर दैट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ऑफ इट्स रूल। सो फर्स्ट थिंग इज हेयर, ऑल नॉन जीरोस आर ऑल नॉन जीरोस। तो जितने भी नॉन जीरोस होते हैं वो हमारे पास सिग्निफिकेंट होते हैं। सिग्निफिकेंट के लिए मैंने शॉर्ट यूज़ कर लिया SF। ठीक है, तो जैसे हमारे पास एग्जांपल के लिए आ गया इट इज़ 576, या फिर मेरे पास हो गया दैट इट इज़ ऑफ 17, या फिर हम बात करें इट इज़ 1.2। ठीक है, तो ये मेरे पास एग्जांपल है। इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर 4। इसमें दैट देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर आर 2, क्योंकि इसमें एक श्योर एक डाउटफुल, इसमें 2 श्योर है एक डाउटफुल है, तो इसलिए हमारे पास ये हो गए दैट इन इट 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो जितने भी नॉन जीरोस हैं वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। नाउ द सेकंड दैट रूल ओवर हियर, इट इज़ दैट all zeros which are going to exist between all zeros between that non-zero digits, they are said to be significant. Digit are significant. ठीक है, तो जितने भी हमारे पास नॉन जीरोस होती हैं
उनके बीच में अगर कोई जीरो आएगी तो वो भी क्या होगी, एक सिग्निफिकेंट होगी। जैसे 101, ठीक है, तो 101 में हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, सो दिस इज 3, ठीक है। या फिर हमारे पास हो गया दैट इट इज़ 9099, ओके। सो ओवर देयर दैट जीरो इज़ बिटवीन द नॉन जीरोज, तो इसलिए हमारे पास इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, दैट इट इज़ गोइंग टू बी 4। या फिर लेट अस सपोज दैट हियर इट इज़ 100.07, ठीक है, तो ये नॉन जीरो, ये नॉन जीरो एंड जीरो इज़ बिटवीन दैम, so it is having 3 plus 2 5 significant figure in it, okay। so thus we come to know over here कि जितने भी जीरोस हैं जो बिटवीन नॉन जीरोस आते हैं they are said to be significant। now the third case over here, so over here all zeros to the right of non zeros are all zeros to the right of non zeros, they are digits to the right of non-zero digit are not significant, ठीक है। तो हमारे पास क्या बोला गया थर्ड रूल के अंदर, जैसे एग्जांपल के लिए ये लिखा मैंने 20, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर विल बी इन इट, ठीक है। तो ये नॉन जीरो के राइट साइड में जीरो आ रही है, ठीक है। सो दिस इज नॉन जीरो, दिस इज जीरो। तो ओवर हेयर व्हाट इज सेड कि जितने भी राइट साइड हैं उस नॉन जीरो के, वो जीरोस जो है सिग्निफिकेंट नहीं होंगी, सो इट विल हैव ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर, वन, ठीक है। now the next over here as we are going to write it is 3000, so in 3000 we will find again it is only significant figure is 1, ठीक है। so thus we get over here there are only one significant figure। next is there fourth rule, this was the third rule, now the fourth rule, that it is all zeros to the right of decimal, to the right of decimal point and to the left of non-zero, to the left of non-zero are not significant, ठीक है। क्या बोला गया है इसमें, जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं ना, ये हमने लिखा दिस इज 0.002, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, डेसिमल के राइट साइड ये जीरोस हैं, ठीक है, और डेसिमल से पहले भी कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर इससे पहले नॉन जीरो हो जाता है तब तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, रूल नंबर 2 बन जाएगा, ठीक है। सो ओवर देयर डेसिमल के राइट साइड हमारे पास जीरोस हैं, लेकिन ये जीरोस जो है उस नॉन जीरो के लेफ्ट में लाई कर रही हैं, ठीक है। तो इसलिए दिस आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। सो ओवर हेयर दैट इट इज़ said to be how many significant figure then it will have, so it is having only one, ठीक है। similarly that if we are going to look over here it is 0.000054, ठीक है, how many significant figure it will have, so you will find that it is only having two significant figure are 2। now if I will write over here it is 0.020, okay, I have written this one। now check over there, ये जो जीरोस हैं ये तो हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं है, जो राइट ऑफ द डेसिमल है दैट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट, एंड यू विल फाइंड ओवर हेयर ये जो 2 है ये क्योंकि नॉन जीरो है इसलिए सिग्निफिकेंट, एंड दिस इज गोइंग टू बी द राइट साइड ऑफ दिस दैट नॉन जीरो, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो ये राइट साइड हमारे पास इस डेसिमल के राइट साइड को नॉन जीरो था, उसके राइट साइड एक जीरो लाई कर रही है, इट इज़ गोइंग टू बी इन द नेक्स्ट रूल, सो इट विल हैव सिग्निफिकेंट फिगर दैट आर 2, ठीक है। इसमें ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। नाउ ओवर हेयर दिस इज द फिफ्थ रूल, so fifth rule it says that let us suppose that it is 0.20 or either there it is 0.230 or either there is 0.2370 or either we are going to say it is 2.23700, ठीक है। सो फिफ्थ रूल सेज दैट जितने भी जीरोस हैं ऑल जीरोस विच इज
all zeros to the right side of decimal, to the right of a decimal, and to the right of non-zero आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया, जितने भी जीरोस हैं जो डेसिमल के राइट साइड है और एक नॉन जीरो के भी राइट साइड लाई कर रही हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास डेसिमल लगा और इसके राइट साइड में ये जीरो आ रही है, लेकिन ये जीरो किसके राइट में है, इस नॉन जीरो के राइट साइड में। ठीक है, तो इसलिए ये क्या होगी, सिग्निफिकेंट। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ गए मेरे पास, देयर आर 2। ठीक है, अगेन यू विल चेक ओवर है, इस डेसिमल के राइट साइड को जितने भी हमारे पास ये दो नॉन जीरो, उसके राइट साइड में जीरो है, तो इसलिए ये जीरो यहाँ पे क्या होगी, सिग्निफिकेंट है। यहाँ पर अगेन यू विल फाइंड ये जो जीरो है ये नॉन जीरो के राइट और डेसिमल के राइट साइड है, तो इसलिए 4 ओवर हेयर। यहाँ पर ये नॉन जीरो है डेसिमल से पहले, तो इसलिए ये एक सिग्निफिकेंट है, तो इट इज़ 1 2 3 4 5 6, तो इसलिए हमारे पास क्या हो गए, सिग्निफिकेंट फिगर 6 हो जाते हैं। And now let us to learn over here that during addition or subtraction, what will be the number of significant figure, how to find out significant figure, and it is in multiplication। तो मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन या एडिशन और के टाइम में हमारे पास जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो कितने होंगे, एंड इट इज़ इन डिवीजन। ओके, so therefore we are going to learn about this significant figure. Now let us to take it with the example. As I am going to have it is 12.32 meter, which I am going to add in this value, which is 100.004 meter. ठीक है, so I am going to add these two value. ठीक है, क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे 12.32 को मैं ऐड कर रहा हूँ 100.004 के साथ। सो व्हाट विल बी माय आंसर, सो दिस विल बी ओवर है 112.324 मीटर। ठीक है, तो इफ़ यू विल चेक ओवर है, ये जो 12.32 था इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो इसमें है सिग्निफिकेंट फिगर देवर 4। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं इसमें, 1 2 3 4 4, और जो मेरे पास ये जो दूसरा डिजिट जो उसके साथ ऐड हो रहा है, ठीक है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो इसमें होंगे 1 2 3 4 5 6, तो इसमें होंगे 6। ठीक है, तो ये 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ हमारे पास यहाँ पर जब एडिशन होगी तो फाइनल आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने हैं। ठीक है, सो रिमेंबर ओवर देयर, जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात आती है तो इन दैट यू नीड टू चेक दिस that which one is having lowest number of decimal places। ठीक है, किसके पास जो है सबसे कम डेसिमल प्लेसेस है। सो इफ ओवर हेयर यू विल फाइंड दैट हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस देर आर, आफ्टर डेसिमल देर इज़ 1 2। ठीक है, इसमें क्या होता है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, और इसमें कितने 1 2 3, इसमें 3 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल आते हैं। ठीक है, तो लिस्ट जो डिजिट्स हैं आफ्टर डेसिमल वो किस में है, सो दिस इज़ ओवर है, इसके डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट्स आते हैं। ठीक है, सो देयरफॉर जो फाइनल आंसर होगा उस फाइनल आंसर में भी क्या होगा, आफ्टर डेसिमल जो डिजिट्स होंगे वो इसी वैल्यू के अकॉर्डिंगली बनाए जाएंगे। ठीक है, सो दस वी विल गेट ओवर हेयर दिस आंसर वी हैव टू राउंड इट ऑफ देन। ठीक है, तो इसलिए फाइनल आंसर को हमें क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। सो दस वी विल गेट दिस वन एज, therefore it is equal to rounded off 112 पॉइंट, कब कहाँ तक राउंड ऑफ करना है इसको, अप टू 2 डिजिट प्लेसेस, डेसिमल के बाद 2 डिजिट प्लेसेस तक इसको राउंड ऑफ करना है। सो वी गेट दैट इट इज़ 112.32 मीटर। ठीक है, सो दिस इज दैट राउंड ऑफ आंसर विच वी आर गेटिंग। ठीक है, सो व्हाट is done by us, so after rounding off we are getting this answer। so remember this one कि जब भी आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उस वक्त जो फाइनल आंसर है उसके अंदर जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, ठीक है, तो उसमें जो डेसिमल प्लेसेस होंगे ये उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंगली है जिसमें सबसे लिस्ट डेसिमल प्लेसेस आ रहे थे। ठीक है,
So over here I'm giving you the question. This question is for you. So just check it out that I'm having this 52.8 and it is 46.35. ठीक है. So you need to tell over there what will be the answer of this one, and how many will be the significant figure in its answer. And the second question which I am going to give you, it is that of 02. Okay, so you need to find out their answer and what will be, how many number of significant figure will be in it. ठीक है, तो इसके फाइनल आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे. नाउ लेट अस टू लुक ओवर हियर दैट इट इज रिगार्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, तो जब दो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो उस वक्त हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो क्या होंगे. सो इट इज़ एक्स इज़ 4.192, वाई इज़ दैट ऑफ 2.02. ठीक है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, सो यू विल फाइंड ओवर हियर इसमें लास्ट डिजिट क्या है, डाउटफुल है, इसमें लास्ट डिजिट क्या है, डाउटफुल है. ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जब ये फाइनल आंसर आता है तो उसमें भी क्या होंगे हमारे पास, डाउटफुल अब ज़्यादा बन जाएंगे. ठीक है, तो उसमें डाउटफुल नंबर क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे. सो नाउ लेट अस लुक ओवर हियर. जैसे ही हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं 4.192 इंटू 10 2.02. ठीक है, सो वी आर गेटिंग इट इज़ 8.46784. ठीक है, सो ओवर हियर हमारे पास क्या होना चाहिए, जो फाइनल आंसर है उसमें क्या होना चाहिए, ओनली एक ही डाउटफुल डिजिट आना चाहिए. ठीक है, सो फॉर दिस देन कहाँ तक हम इसको राउंड ऑफ करें. ठीक है, सो यू शुड टू लुक ओवर हियर विच नंबर इज हैविंग लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर. ठीक है, तो किस में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है. सो यू विल फाइंड ओवर हियर इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने थे, 1 2 3 4, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं सेकंड वैल्यू में, इट इज़ हैविंग ओनली 3. ठीक है, तो इसलिए ये जो लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर जिसके पास है वही फाइनल आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर बनेंगे. सो इट मीन टू से हमारे पास फाइनल आंसर में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर बनने हैं, 3. सो यू नीड टू राउंड इट ऑफ. अगर आप 4 को राउंड ऑफ करते हो सो नो इंक्रीमेंट इन दिस प्रीवियस वैल्यू. अगर 8 को रिमूव करते हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक एक्सीड हो जाएगा, इट विल बिकम 8. और अगर आप इस 8 को राउंड ऑफ करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक एक्सीड हो जाएगा. सो इट विल बिकम दैन 8.47. नाउ चेक ओवर देयर. ये जो मेरे पास फाइनल आंसर है दिस इज हैविंग नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर दैट आर 3. ठीक है, तो इसलिए ड्यूरिंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो उस नंबर के अकॉर्डिंगली होंगे जिसमें लिस्ट आते हैं. ठीक है, जिसमें लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे. सो दिस इज सेम फॉर द डिवीजन मेथड एज वेल. ठीक है, मेथड डिवीजन के लिए भी ये सेम है. तो जैसे एग्जांपल के लिए लेट मी टू कंसीडर ओवर है एग्जांपल, यहाँ पे सपोज कर रहा हूँ. एग्जांपल है कि x की वैल्यू है 7500. ठीक है, और y की वैल्यू है मेरे पास 20.83. ठीक है, नाउ ओवर हेयर दैट व्हेन आई डिवाइडेड x बाई y. ठीक है, तो दिस विल कम आउट टू बी 7500 अपॉन में 20.83 एंड विच इन टर्न इज इक्वल टू 360.0576. ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास. ठीक, सो ओवर हेयर हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर, फर्स्ट टू चेक इन इट. इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर थे. ठीक है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हैं ओनली 2. ठीक है, क्योंकि नॉन जीरो के राइट साइड जीरो लाई कर रही है, कोई डेसिमल प्लेस नहीं है यहाँ पे. ठीक है, तो इसलिए हमारे पास इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ओनली 2 हैं. और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, देयर आर 4. ठीक है, सो देयरफॉर जो फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर में क्या होंगे, लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे. ठीक है, तो लिस्ट किसके थे, ये थे हमारे पास कितने, 2. सो यू विल राउंड ऑफ योर आंसर. तो इसको जब आप 6 को राउंड ऑफ करोगे यहाँ पे इंक्रीज होगा, 8 बन जाएगा. 8 को राउंड ऑफ करोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 बन जाएगा. इस 6 को राउंड ऑफ करोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1. इस 1 को राउंड ऑफ करोगे तो यहाँ पे 0 रह जाएगा. ठीक है, सो देयरफॉर वी विल गेट इट इज नियरेस्ट नंबर रखना है आपने. 360 नियरेस्ट नंबर है, ऐसा नहीं कि 36 ही बना दिया. ठीक है, तो 360 और 36 में डिफरेंस है काफ़ी. ठीक है, तो नियरेस्ट नंबर में रखना होता है उसको. तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे देखो क्या बन गया, जो जीरो होगा ना वो हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि ये 2 नॉन जीरो के राइट साइड में लाई कर रहा है. ठीक है, सो दस ओवर हेयर वी कम टू नो अबाउट दैट इट विल हैव फाइनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर.
तो इसके दो सिग्निफिकेंट फिगर है. ओके, सो हियर वी कम टू नो अबाउट द रूलिंग ऑफ हाउ टू find the significant figure in the numbers which is given to us. Thank you for watching the video.